محبت رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بہت متقی ہے، نماز کا پابند کرتا ہے، روزے دار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر خدا کی محبت نہیں، اس کے دل میں تلاوت رسول ہے، اس کا انجام دنیا میں برا ہی برا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آپ تاریخ کو مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، لباس سے خشک ہو گیا ہو، لیکن مجھے اس سے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے سید مصطفیٰ انیس احمد۔ اب اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے مائک پر آ رہی ہے مومن ارم محمد نفیس، جن کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ایمان ہے، اور تیار ہے مومن حفصہ عظیمہ مجاہد اختر۔ بیٹا پہ ایک منٹ بیٹا، جج صاحبان نوٹ کریں، مائک پر ہے نمبر شمار 26، مقررہ کا نام ہے مومن ارم محمد نفیس، عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ایمان ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ایمان ہے۔ محمد کی محبت دی حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ معزز برادران اسلام، آپ غور کیجئے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کے گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا، اس سے راضی کرنا ہوگا۔ اگر
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उनके लब को छुई और वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। इस ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, आपको अब कीजिए तो पता चलेगा अमाल का दारोमदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इससे साबित हुआ कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो मुझसे मोहब्बत करो। ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए कि तो पता चलेगा अमाल का दारोमदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इसीलिए सहाबा ने कह दिया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नेक अमाल ज्यादा नहीं है लेकिन आपकी मोहब्बत जरूर है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। इससे साबित हुआ कि मोहब्बत रसूल तमाम नेक अमाल से बढ़कर है और मोहब्बत रसूल का बदला जन्नत है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। इन्नल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच है बेशुमार जलाए गए चिराग, ये सच है बेशुमार जलाए गए चिराग, लेकिन सवाल ये है कि उजाला किधर गया। ये थी मोमिन इरम मोहम्मद नफीस। अब आपके सामने तशरीफ़ ला रही है मोमिन हफ्सा अजीमा मुजाहिद अख्तर। उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। इसके बाद तैयार रहे मोमिन अलहादी मोहम्मद फ़ारूक। अलहादी मोहम्मद फ़ारूक अगर यहाँ पे है तो फ़ौरन स्क्रीन पर तशरीफ़ ले आ जाए। जज साहबान नोट करें, माइक पर है मोमिन हफ्सा अजीमा मुजाहिद अख्तर। मौसूबा का उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। यही है इबादत, यही जो ईमान के काम आए, दुनिया में इंसा के इंसा जनाब सद अहले मीज़ान और हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। हाजिर महफिल, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसकी बुनियाद फलाह और रहमत है और जिसके साथ साथ हुकूकुल इबाद भी मुकर्रर है और इस्लाम की नज़्म में पूरी इंसानियत एक कुंबा है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। इस्लाम अमन व सलामती का मज़हब है जो रास्ते से कांटा हटाने पर अजर देता है। किसी इंसान के नाक कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल करार देता है और इस्लाम बीमारों की अयादत का हुक्म नाफिज करता है और हक तलफी पर सज़ा मुकर्रर करता है। इस्लाम यतीमों बेवाओं की मदद के लिए एक नज़म और के तस्वुर का पेश करता है और फजूल खर्ची पर रोक लगाता नजर आता है। इस्लाम ना करने लेन देन में और दिखाए मामलत में इंसाफ का हुक्म देता है और हक तलफी पर सज़ा मुकर्रर करता है। हाज़रीन महफिल, इस्लाम दीन फितरत है, यह हुस्न अखलाक को आला दर्जा हासिल है। ये लोगों को हक बात का हुक्म देता है, सच्चों के साथ रहने की तालकीन करता है और लोगों को बुराई से रोकने पर अजर सवाब देने का वादा करता है। ये एहसान करने वाले अफराद को पसंद करता है। इस्लाम की तालीमात में इस बात को अहमियत हासिल है कि तुम में वो शख्स कामिल मोमिन है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जिसे वो खुद पसंद करता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक़त के लिए कन्नते करो बया। ये थी अफसा। अब अलहादी फारूक है। अब बेटा माइक पर है। जज साहबान नोट करें, नंबर शुमार 28। मुकर्रिर का नाम है मोमिन अलहादी मोहम्मद फ़ारूक। उन्वान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म इस्तिक़लाल बेमिसाल। इसके बाद तैयार रहे मोमिन ज़ुमरा असरार अहमद। मोमिन ज़ुमरा असरार अहमद ये तशरीफ़ रखे। माइक पर है नंबर शुमार 28
मोमिन अलहादी मोहम्मद फारूक। अस्सलाम मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक तआला को मुझे साफ फरमाता है कि मैं सबर करने वाले साधु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सबर करने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको सबर देगा और सबर से ज़्यादा और बहुत सी भलाइयों समेटने वाली वसीस और कोई नहीं। हुजूर ने फरमाता है कि जो लोग खुदा के फैसले पर इंसान को कोई तकलीफ, खुदाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरते ही शेख सवाल मैदान जंग में ये थे मोमिन अलहादी मोमिन अली मोहम्मद फारूक। इसके बाद तशरीफ ला रही है मोमिन जुमरा असरार अहमद। मौसूफा का उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। इसके बाद तैयार रहे मोमिन कुलसुम नियाज अहमद। मोमिन कुलसुम नियाज अहमद है यहाँ पे। मोमिन कुलसुम नियाज अहमद आप बड़े पे जज साहबान नोट करें नंबर शुमार 29 माइक पर मुकर्ररा मोमिन जुमरा असरार अहमद। उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का मेरा उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम एक सच्चा और प्यारा मज़हब है जिसकी मिसाल कोई दूसरा मज़हब नहीं। हमारी पैदाइश से अब तक इस्लाम ने जो हमें सहूलतें अता की है, जो क़वानीन अता की है, जो इज़्ज़त और वक़ार अता की है, वो हमें किसी और मज़हब में ना मिलती। इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है जिसने 5 वक्त की नमाज़ें अता करके बारगाह हमदियत से मुसर होने का सामान फराहम किया। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख के हालात उलट कर देखे, इस्लाम ने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी आगोश में पनाह दी जिनकी मंजिल का कोई किनारा ना था, जिनकी जिंदगी का कोई सहारा ना था, जिनका कोई मकसूद ना था, मगर आगोश इस्लाम ने आने के बाद इस्लाम ने उनको अपने आगोश करम से ऐसा नवाजा के आज सारी कायनात का मुसलमान उनकी जिंदगी से सबक हासिल करता नजर आ रहा है। उनकी जिंदगी के हसीन गोशों को अपनी जिंदगी में मुंतकिल करता नजर आ रहा है। खुद कुरान ने इस बात को वाज़ह किया और बताया अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम ने हमें करीने जिंदगी से नवाजा, सिलत अखलाक के जेवर से आरास्ता किया, को हर कामयाबी से मुज़य्यन किया, जिंदगी गुजारने के अतवार सिखाए। मैं गैर मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोगों को आवाज़ देती हूँ, आप तुम भी आगोश इस्लाम में पनाह लो, क्योंकि यही वो मज़हब है जो तुम्हारी हमारी सबकी कामयाबी और कामरानी का ज़ामिन है। कामयाबी और कामरानी का ज़ामिन है। मौला हम सबको इस्लाम के जेवर पे आरास्ता आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बार फिर जो है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि जब कोई मुकर्रिर या मुकर्रिरा अपनी तकरीर पेश करे तो आप अपनी जगह पे बैठ जाते हो। अंदाज़ बयां कर जब बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बान। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बासत नबियों से कबल अरबों के मजहबी, माशरती और इखलाकी हालात की ज़बूहारी से कौन वाकिफ नहीं। ना यकीन की दौलत थी, ईमान की फरावनी, ना अदल व इंसाफ था, ना कुव्वत व मुरव्वत, ना अमानत व सदाकत थी, अमन फ़हीम की कमी थी, जहद मुसलसल का फुक़दान था। ऐसे पुरआशूब दौर में जब दुनिया तबाही व बर्बादी के गार में दाखिल हो रही थी, एक बिजली चमकी और फिर निकला
का सूरज। जी हाँ हाज़रीन, यही मेरा मौज़ूए सुकन है। या साहिबे जमाल वरुल सैयदुल बशर, या साहिबे जमाल वरुल सैयदुल बशर, मन बजुल हक़ल मुनीर लक़द नूरुल कमर। रुत बदली, समा बदला, खज़ा के दस दराज़ियों का मौसम रुखसत हुआ, बहार के दिल अफरोज हुए, झोंकों के काफिले आए, सराय तिश्नलब को सैराब करने के लिए बादल छा गए। मोरिक ये कहने पर मजबूर हो गए, वाकई ने उसके कीमिया साथ लाया। जिसने उसको देखा फिर उसी का हो गया, जिसने उसको सुना फिर उसी का बन गया। औरतों को ऐसा मुकाम अता किया कि शजर व हज ने भी गवाही दे दी कि यही रहमतुल्लिल आलमीन है। तुमने हर जर्रे में बर्पा कर दिया तूफान शौक, तुमने हर जर्रे में बर्पा कर दिया तूफान शौक। एक तबस्सुम इस कदर जलवाओं के तुगयानी के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खालिके अर्ज़ो समा, मालिके कौनो मका, रब दो जहां के बाद अगर बीती हस्ती पर, खुशकी व बरकरी पर, कुर्रे अर्ज़ पर किसी का मुकाम व मर्तबा है, कोई जात वाला है, तो वो जात मोहम्मद अरबी हाशमी नूरी की है। ये वो जात है जिसने अरबों की जिंदगी का रुख बदल दिया, जिसने गुमराह इंसान को इंसानियत से रोशनास कराया, जिल्लत व जहालत के उकगाह से निकालकर सादत व हिदायत के बामे उरूज पर पहुंचा दिया। इलाकत व बर्बादी की राह पे गामज़न दुनिया को सिराते मुस्तकीम पर लगा दिया और तारीख दिलों में ईमान का नूर पैदा किया। यूं तो दुनिया स्टेज पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मगर कुर्बान जानिए महबूब रब कायनात फख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इब्राहीम की रज़ा, इस्माइल की इत्तियात, अय्यूब का सब्र, सुलेमान की शौकत, मूसा का कलीमी, कीस की मार्फत, नूह की शुजाअत, बेक वक्त सारे सिफाहत, सारे कमालात के जामे जिससे बेनज़ूर थी। दुनिया में बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया में बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी ना मिला। हाज़रीन इकराम, आपकी जिंदगी का हर पहलू मुकम्मल और मुकर्रम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक रोशन मीनार की तरह है। दूर अंधेरे में भटकने वाला जहाज भी इस रोशनी को देखकर मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता है। शर्त बस इतनी है कि उस रोशनी में चले, चलता ही रहे सदियों का कलम, पूरी न हुई रुदाद करम, चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरी न हुई रुदाद करम। दरियाओं का पानी सूख गया और साफ नबी लिखते लिखते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी, ये आलम पसंद आया। ये थी उम्मे कुलसूम नियाज़ अहमद। अब आपके सामने अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है अंसारी सना सिकंदर, जिनका उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है। और तैयार रहे मोमिन अस्मा शमसुद्दीन। मोमिन अस्मा शमसुद्दीन तैयार रहे, माइक पर है। जज साहबान नोट करें, नंबर शुमार 31, मुकर्ररा है अंसारी सना सिकंदर, उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है।